کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو عثمان غنی جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی، وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے قبریں دیکھ کر کے اتنا روتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ ٹپکنے لگتے۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہتے آپ بخش آئے ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو میرا امام کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کلی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ سجدوں کی طلب پیدا کر لو، لیکن مسلمان ہے، اذان کی آواز سنتا ہے اور گلیوں میں گھومتا نظر آتا ہے۔ جس قوم کو آج موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی، جسے آج پب جی گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، جسے آج فری فائر گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، آج جس قوم کو آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، آج میری قوم سے اگر آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پوچھو گے تو میری قوم کے نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ اور ابھی ان سے پوچھ لو آئی پی ایل کی ٹرافی کون سی ٹیم جیت کر لے گئی، ابھی یہ قوم کے نوجوان بتا دیں گے۔ ابھی پوچھ لو ایشیا کپ میں کون سی ٹیم جیت رہی ہے، آج یہ میری قوم کے نوجوان بتا دیں گے۔ آئی پی ایل میں سٹے لگائے جا رہے ہیں، آئی پی ایل میں جوا کھیلا جا رہا ہے، اور کوئی رمی جمار پہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی ڈریم 11 پہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی رمی سرکل پہ جوا کھیل رہا ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جواری جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے۔ ان ہاتھوں سے امام حسین سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے غوث اعظم سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے غریب نواز سے مصافحہ کرنا ہے، ان ہاتھوں سے مولا علی سے مصافحہ کرنا ہے۔ کیا ہم یہ ہاتھ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا یہ ہاتھ ہمارے اس لائق ہیں؟ یہ آنکھیں گندی فلمیں دیکھ کر کے، یہ آنکھیں گندی تصویریں دیکھ کر کے اس لائق نہیں رہی کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم امام حسین کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ ہائے بگڑی تو کہاں آ کر لاؤ، عین مجدھار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام کربلا، علماء اہل سنت۔ جب انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تب اس کے اوپر ظالم حکمران مقرر کیے جاتے ہیں۔ دیکھ لو بغداد کی تباہی، ہلاکو خان نے ایسا قتل عام کیا تھا بغداد کے اندر کہ مورخین لکھتے ہیں 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوتی ہے تو کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ جو کتابیں ہمارے بزرگوں نے محنتیں کر کے لکھی ان کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ یہ بھی تاریخ میری قوم کے نوجوان بھول گئے، ارے دور کیوں جاتے ہو؟ چلو میں آپ کو کانپور لے کر کے چلتا ہوں۔ کانپور میں شہیدوں والی ایک مسجد ہے، وہاں پر کیا ہوا؟ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، مسلمان مسجد بنا رہے تھے، انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے، مسلمان بولے ہم بنائیں گے، انگریز بولے ہم روکیں گے۔ مسلمانوں نے کہا تم روک کے دکھاؤ، انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ۔ مسلمانوں نے سوچا ہم پہ گولی چلا دی جائے گی تو چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھا دیے، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے۔ جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے 17 راؤنڈ گولی چلائی گئی ان بچوں کے اوپر، وہ بچے وہی شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہوئی ہوں گی۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا کانپور کے اندر۔ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ ان کو تو بس پتا ہے کہ کون سے ہیرو کی فلم سپر ڈپر ہٹ ہو رہی ہے، کون سے ہیرو کی فلم نے کتنا کلیکشن کیا، کس نے کتنے پیسے کمائے۔ آج جس قوم کو اگر پتا نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں پتا ہے، ہمارے بزرگوں کی ہسٹری نہیں پتا ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں معلوم ہے۔ اتنی اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج اس موبائل کی لعنت نے میری قوم کے نوجوانوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ یہ اپنے عالموں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ یہ اپنے حافظوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ یہ مدارس کے مدرسین کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ مساجد کے ائمہ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے تب نہ بزرگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی،
इनके पास बैठेंगे तब ना अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री सुनने को मिलेगी। वही मोबाइल में लगे हुए हैं, 10 साल लग जाते हैं मसाइल समझने के लिए इन उलमाए किराम को। तू 5 मिनट की क्लिप सुन करके यूट्यूब पे मसला समझ लेगा। ये आज बहुत मामला चल रहा है। 5 मिनट की क्लिप आपने देखी और अपने आप मुफ्ती बने बैठे हैं, व्हाट्सएप पे जवाब दिए जा रहे हैं। 10 साल लग गए उलमाए किराम को मसाइल समझते समझते, वो किताबें देख करके मसला बता रहे हैं। ये साहब 5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुनी और जवाब दे रहे हैं यूट्यूब पर, और जवाब दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर कि इस मसले का जवाब ये है। इतना याद रखो, जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। एक इंसान कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे मकान बनाने के लिए खड़ा कर दो, क्या वो मकान बना पाएगा? जो मकान बनाने का मिस्त्री है उसे ले जा करके दर्जी की दुकान पे बिठा दो, कहो कि एक जुब्बा या एक कुर्ता सिल दो, क्या वो सिल पाएगा? नहीं। जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। इतना याद रखना, कुछ चीजें उलमा के पास बैठने से मिलती है। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ चीजें जो है वो उलमा के पास बैठने से मालूम होती हैं। इसलिए अपने उलमा के करीब हो जाओ। बता मैं ये रहा था कि कितने बड़े हादसे हुए करबला के बाद में। गरनाता स्पेन के अंदर कैसी तबाही हुई, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। बगदाद में कैसा मुसलमानों को काटा गया, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों को काटा गया। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी पेवस्त कर दी गई, किसी को घर के साथ में पूरे परिवार के साथ में जला करके राख कर दिया गया। कैसा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। आज मैं उन बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, क्या वजह है कि मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया। लेकिन 1384 साल हो गए, मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, मैं आज तक हुसैन को क्यों नहीं भूला? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जाने शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है, नबी के दीन की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक नमाजें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फारूक आज़म अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है। हाँ, वही हुसैन जिसे रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिसे अली का लख्त जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फातिमा का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और हर हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहा है। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। अल्लाह या रसूल अच्छा पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अभी मैं बताऊंगा आपको कौन हुसैन है। क्या बात, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेशक कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का
एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमने एक मुस्लिम घराने में आंखें खोली है, इसलिए हमको इस चीज का एहसास नहीं है कि ये इस्लाम फैलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जब मेरे आका इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त अगर मेरे आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते और ये कहते अपनी कौम से, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर ये कह के आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ऐ मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए जैसे ही बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो मेरे आका की मुकद्दस पेशानी, उससे खून छलक पड़ा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। दूसरी शहजादियों ने देखा, रोने लगी। मेरे आका की शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा हुजरे से बाहर आई। देखा आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। कपड़ा पानी में भिगो करके मुकद्दस पेशानी से खून को साफ किया। आज की औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है ये परेशानी उठाने की, अगर ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए, आप अपने हुजरे में आराम कीजिए। वो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। मेरे प्यारे मुसलमानों, ताइफ का वो मैदान जहां मेरे आका तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए तो काफिरों ने मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी और ऐसे पत्थरों की बारिश हुई कि तारीख में लिखा है कि एक पाए मुबारक पे आकर के पत्थर लगता, आका अपने उस पाए मुबारक को उठा लेते, दूसरे पैर में आकर के पत्थर लग जाता। अल्लाह अकबर, नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत समंदर की लहरों पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप मुझे इजाजत दे, मैं इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यही डूब करके मर जाएं। एक फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, यही पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, एक फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। आज जो कौम मुझे नहीं पहचान रही है, मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूँ, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेंगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर जानेगी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया, जो कौम मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जो कौम मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करती थी, उसी कौम की औलाद मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाती हुई नजर आई। मेरा ईमान पुकार के कहता है, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। फिर वो दौर भी आया कि मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे,
میرے آقا کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھتی گئی اور کافر ایسے ہنس رہے تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا ٹھٹا مار کر کے ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ گرے جا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آ کر کے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے آقا نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے، لیکن آج یہ قوم اپنے نبی کو بھول گئی، آج اس قوم نے اپنے نبی کو فراموش کر دیا۔ جو قوم 2.5 گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے دیکھ لے اور نبی کے ذکر کی محفل میں 1 گھنٹہ نہ بیٹھے اور دعویٰ ہے نبی کے نام پہ گردن کٹا دیں گے، نبی کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا دیں گے، جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا پیار کرو۔ جو قوم اپنے نبی سے سچی محبت نہیں کرتی اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نہ سب لوگ تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اگر وہ تاریخ کا باب آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ میرے آقا نے یہ اسلام اپنی امت تک پہنچایا تو امت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، تبلیغ اسلام کی ہے میرے آقا، ہم اس کا بدلہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ رب نے قرآن میں فرمایا قل اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا ہے، جو تبلیغ میں نے تمہارے درمیان کی ہے، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے۔ میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جان ملی ہے تو میرے صدقے میں ملی ہے، تمہیں مال ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے، تمہیں اولاد ملی ہے تو میرے صدقے میں ملی ہے، تمہیں رمضان ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے، تمہیں رحمان ملا ہے تو میرے صدقے میں ملا ہے۔ میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس کی قیمت نہیں مانگتا، میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، اپنے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں، وہ کون سے آپ کے اہل بیت ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کون حسین ہیں، کون علی ہیں، کون فاطمہ ہیں اور کون امام حسن ہیں؟ آپ ذرا سوچو تو صحیح، کسی کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام اس کا دادا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی ماں رکھتی ہے، یہ حسن اور حسین کے نام کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی نام ہیں، یہ دونوں نام اللہ نے جنت میں چھپا کے رکھے تھے۔ جب میرے آقا کے نواسے اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ دونوں نام لے کر کے بھیجا، ایک کا نام حسن رکھا گیا، ایک کا نام حسین رکھا گیا۔ اور آپ دیکھو تو صحیح امام حسن کی شان اور امام حسین کی شان، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسین ہے؟ بات مجھے بہت مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہے اور آپ کو کربلا کا پیغام بھی بتانا ہے۔ شہادتیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن شہادتوں سے پیغام کیا ملتا ہے؟ ہمیں وہ پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ پیغام آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ کون حسین ہے؟ میرے آقا کے ایک زانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر میرے آقا کے
के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है इन दो में से एक को अल्लाह वापस लेना चाहता है, इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो आप अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा अगर मेरा नवासा दुनिया से जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हसन को तकलीफ होगी, और मेरा शहजादा दुनिया से गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल मेरा नवासा मुझे महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, जवानी की दहलीज पे पहुंचते हैं। आज हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं लेकिन हुसैन की अदाओं को नहीं अपनाते। देखो हुसैन की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी के प्यारे सहाबी हैं जिन्हें हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहा जाता है, जब वो बीमार पड़ गए तो मेरे आका इमाम हुसैन उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। बीमार को देखने जाना ये इमाम हुसैन की भी सुन्नत है और मदीने वाले मुस्तफा की भी सुन्नत है। आज इधर बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता, रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने के लिए नहीं जाता। ये मेरे आका इमाम हुसैन है जो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जा रहे हैं। नबी की हदीस पाक भी है, आका इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनना जलालपुर संभल वालों, मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। पहला हक क्या है, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी आपकी बुराई सही। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है और आपको वो सलाम कर रहा है, वैसे भी मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा आपस में नाराजगी नहीं रखनी चाहिए बल्कि अपने भाई से सुलह कर लेनी चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान आपस में कोई बात हो गई तो आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए। लोगों ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा जो मौला अली के बेटे हैं, दूसरी बीबी से थे, और मेरे आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए तो लोगों ने कहा वो हुसैन तुमसे बात नहीं करेंगे। वो कहते मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे जरूर बात करेगा। कहा हमने देखा है बड़े जलाल में उठ कर गए हैं आका हुसैन। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, उसमें सलाम किया, सलाम के बाद में नीचे लिखा जिस बाप के तुम बेटे हो उसी बाप का मैं भी बेटा हूँ। हाँ मेरी माँ अलग है, तुम्हारी माँ मदीने वाले मुस्तफा की शहजादी है, इसलिए तुम्हारी माँ का मर्तबा बड़ा है। मेरे भाई नाना मुस्तफा की हदीस मैंने पढ़ी सुनी है और पढ़ी है। नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊं। जैसे ही ये खत आका हुसैन को मिला मुस्कुराते हुए आए और अपने भाई को अपने सीने से लगा के फरमाया बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये है आपस में मोहब्बत। आज भाई भाई नाराज बैठा हुआ है, जरा सी दीवार के पीछे भाई ने भाई से बुराई कर ली, एक मींड पे दोनों का खेत है, एक भाई ने ज्यादा छाड़ दी दूसरे ने कम, आपस में ना इत्तेफाकी हो गई, लड़ाइयां हो गई। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 3 दिन से ज्यादा आपस में ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। पहले अपने भाई से जो सुलह करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। हजरत इमाम हुसैन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने आ रहे हैं और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। अगर मुसलमान बैठे हुए हैं, एक मुसलमान को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तीसरा हक ये
हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और चौथा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। बीमार को देखने जाने में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और पांचवा हक मुसलमान का मुसलमान पे ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज गरीबों के जनाजे में कोई जाना भी पसंद नहीं करता और अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के कांधे लगाए जाते हैं। बार बार उसे दिलासा देने की कोशिश की जाती है ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं, ताकि उसे ये पता चल जाए कि मैं भी उसके यहाँ जनाजे में शामिल हुआ था। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, वो मुसलमान है, सुन्नी सही अकीदा है, तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे दो फायदे हैं, बुजुर्ग कहते हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मौलाना फरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी। जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आका इमाम हुसैन बीमार को देखने जा रहे हैं। पता चला बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और आका इमाम हुसैन की भी सुन्नत है। सिर्फ वाक़यात सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना चाहिए, हुसैन के किरदार को अपनाना चाहिए, हुसैन की सीरत को अपनाना चाहिए। यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या थी? वो सन हिजरी 60 वही थी जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। तब उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठता है। उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला गया वो मेरे आका इमाम हुसैन है। जब मेरे हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं की, आपने सोचा कि मैंने यजीद की बैयत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ अब लश्कर भेजेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नाना की मुकद्दस सरजमीन पर खून की नालियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना जिला सबको अजीज होता है। जरा हुसैन से पूछो, जब मेरे आका इमाम हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के जब नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। 3 रातें गए मेरे आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे हाजिरी के लिए, फिर अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए, फिर इमाम हसन की तुरबत पे आए, और जब मदीने शरीफ से बाहर निकले तो उस वक्त इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे मदीने की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मदीने की तरफ मुड़ मुड़ कर? तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? आपके संभल में, कुर्बो जवार में और खुद जलालपुर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खदरा की बहारों को देखा होगा, जिन्होंने सुनहरी जालियों के नूरानियत को देखा होगा,
बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना। मुझे खुद हाजियों ने बताया कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, घर बार की भी याद आती है, अजीजो अकारिब की भी याद आती है। और जब वही सच्चा आशिक़ रसूल जब मक्के से मदीना पहुंचता है, दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में सरशार हो जाता है। फिर नबी की मोहब्बत का जो चिराग उसके सीने में जल रहा है वो और तेज लौ पकड़ लेता है। आज उस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 7 दिन या 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रहने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन के बाद कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब वो अपना सामान सफर तैयार करें, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। आप पूछ लीजिएगा, तारीख बताती है जैसे ही एक हाजी के कानों में आवाज पहुंचती है, 7 दिन 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी सामान सफर बांधता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे पहुंचता है। सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, ए मेरे आका, पूरी जिंदगी इस दयार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा तो दिया, 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में एक दुआ करके जा रहा हूं, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे सेहत दे, अगर तू मुझे तंदुरुस्ती दे तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत बता रहा हूं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसका घर बार मदीने में नहीं, जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी की सुनहरी जालियों का दीदार किया है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। जब हाजी मदीने से निकले तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो जरा सोचो जलालपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, जिसका खुद का मकान मदीने में है, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उससे मदीना छोड़ने पर आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वो मदीना हुसैन से छूटा। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि इस इस्लाम को फैलाना हुआ। हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया, खुतूत का सिलसिला शुरू हुआ। वो खत लेकर के आका हुसैन कूफे के लिए निकले। कहाँ के लिए निकले? थोड़ा बोलो आप, कहाँ के लिए निकले भाई? सीटी की थोड़ा सही कीजिएगा इसकी आवाज। कूफे के लिए निकले, लेकिन तकदीर ने कहाँ पहुंचाया? करबला। मुकद्दर ने कहाँ पहुंचाया? करबला। और जब करबला आप पहुंचे तो पूछा ये कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। पूछा कोई और नाम? कहा हाँ, इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया बस यही सवारियां रोक लो, यही वो जगह है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे आका इमाम हुसैन से पूछा आपके साथियों में से किसी ने कि ये जगह आपने पहचानी कैसे? तो आका हुसैन फरमाते हैं मैं अपने बाबा के साथ एक जंग से वापस हो रहा था,
तो इसी नहरे फुरात के किनारे पर मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो मेरे लाल, यही वो जगह है। निशान लगा के फरमाया, बेटा यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे साथियों के खेमे लगेंगे, यहाँ तुम्हारे बड़े बेटे का खून बहेगा, यहाँ तुम्हारे छोटे बेटे का खून बहेगा, बेटा यहाँ तुम्हारे भतीजे शहीद होंगे। पूरा नक्शा मौला अली शेर खुदा ने करबला का इमाम हुसैन को बता दिया। सबको पता था कि हुसैन शहीद किए जाएंगे, लेकिन किसी ने ये दुआ नहीं की, अल्लाह ये आजमाइश हमारे बेटे से दूर कर दे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा, हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। हुसैन मैदान करबला में कितने लोगों ने जामे शहादत नोश किया? 72 ने जामे शहादत नोश किया। कितनों ने? 72 ने। और उन 72 के मुकाबले कितना बड़ा लश्कर आया था? 22,000 का लश्कर आया था। कभी आपने सोचा है ये कोई मुकाबला है? उसमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उसमें कमसिन बच्चे भी हैं, उसमें 80 साल के करीब बुजुर्ग भी हैं। उन 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया कहती है इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 को भेज दिया है। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है, में देखना और है। अरे को देखना और होता है, में देखना और होता है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं, उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं जो तनहा कई कई हजार के लिए काफी हुआ करते हैं। इसलिए वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। अरे शेर का बेटा भी शेर होता है, शेर का बेटा भी शेर होता है। 72 के मुकाबले में 22,000। अरे ये 22,000 की क्या औकात थी? 72 के मुकाबले में मुसलमान चंद होते हैं फिर भी हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। कुरान मेरा फरमाता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन अला अला गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। आज तुम्हारे नामाए अमाल के अंदर नेकियां कम हो गई, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो गए, जिसकी वजह से आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए। वरना मुसलमान की शान ये है, अगर मैं आपके सामने तारीख का एक बाब रख दूं तो आप कहोगे कि मुसलमान किसे कहते हैं। वो करबला के मैदान से जरा यरमूक के मैदान में चलिए, वो यरमूक का मैदान है। ये कारी यूसुफ रजा समदली साहिब किबला जमी उलमाए किराम मिंबर नूर पे जो तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूं। वो यरमूक का मैदान है जहां पर ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के आए हैं और उनकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला है 60,000 अरबी फौजों को लेकर के आया और आकर के उससे रूम के बादशाह से कहता है तुम मुकाबले के लिए मत जाओ, हम मुकाबले के लिए जाते हैं। मैं 60,000 फौज लेकर जाता हूं, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। अरबों अरबों का मुकाबला होगा, वो भी अरबी है, उनका खून भी गर्म है, हम भी अरबी हैं, हमारा खून भी गर्म है। हकीकत पुकार के कहती है ऐ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गरम खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगाम इस्लाम। मुसलमान कामयाब होता है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत के साये में कामयाब होता है। जब जबला 60,000 की फौज लेकर के आया तो मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मुसलमानों से
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम सब्बल हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। देखिए माशाअल्लाह दोनों शख्सियतें जलवागर हैं। उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम सब्बल और उधर हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला खलीफा हुजूर ताजुल शरिया की आमद हो चुकी है। मुफ्ती आज़म संभल की आमद हो चुकी है। अब आप अपने नूरानी चेहरे की ज़ियारत से आप अपने माथे की निगाहों से आलिम बाअमल के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। वहीं खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब किबला का आपको समाअत करना है। हजरत की आमद हो चुकी है। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत अब मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। बस सुने कि मुसलमान की शान क्या होती है। करबला के 72 को बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। वो यरमूक का मैदान है। यरमूक का मैदान, गस्सान का बादशाह जबला 60,000 फौज लेकर के आया और कहता है कि मैं जाऊंगा मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे वो थे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मशवरा किया मुसलमानों से, बताओ 60,000 फौज लेकर जबला आया है, कितनी फौज को भेजा जाए। एक सहाबी खड़े हुए बोले पूरी फौज को भेज दिया जाए उसके मुकाबले के लिए। एक मुसलमान बीच में से खड़े होकर बोले क्या बात करते हो, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इतनी 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। तो फिर एक मुसलमान खड़े हो गए, बोले इनको इतनी अहमियत दी जा रही है, 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान जाएंगे। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 3,000 मुसलमान। कहते हैं हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कोई और मशवरा देने वाला है। तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले हाँ मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। बात इस पे तय हुई, तभी नजर पड़ी हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के ऊपर। तो पूछा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम कोई मशवरा नहीं देते? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 को इतनी अहमियत न दी जाए, इनके लिए 1,000 मुसलमान ज्यादा रहेंगे। मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सिर्फ 60 मुसलमान। पूछा क्या मुनासिब रहेंगे, क्या ये बेहतर रहेंगे 60 मुसलमान? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। आप कहते हैं ए अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तनहा तलवार लेकर के जाऊं और इन 60,000 को अभी धूल चटा करके दिखा दूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो तादाद से नहीं डरते हैं बल्कि तादाद उनसे डरा करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। तो ये है 60 मुसलमान लेकर के जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मैदान में उतरे हैं, जबला की 60,000 फौज, वो सोच रहे थे ये मुसलमान माफी मांगने आ रहे हैं। जब पहुंचे करीब में, पूछा जबला ने क्यों आए हो? कहा तूने ही तो मुकाबले की दावत दी है, इसलिए हम आ गए तुझसे मुकाबला करने के लिए। कहता है क्या डर नहीं लगता? इतनी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए आ गए। तुम्हारे लश्कर जमात का अमीर कौन है? हटे बीच में से मुसलमान और नजर आए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद। देख के थर्रा गया जबला, कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहता है तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, तुम इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए 60 मुसलमान लेकर के आ गए। फरमाया वो तो वक्त बताएगा, तारीख बताती है। जब वो 60 मुसलमान उस 60,000 फौज के अंदर घुसे थे तो ऐसा कत्लेआम हो रहा था, गाजर मूली की तरह कट के जमीन पे गिर रहे थे। इधर हजरत
के अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ हाथ उठा के कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेजा है, अगर ये 60 मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचा के रखे रहा, 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे आका की बारगाह में रो रो के दुआ कर रहे थे, इधर धूल उड़ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तो समझ गए कि मुसलमान अभी जिंदा है। जब धूल छटती है तो क्या देखा कि जबला अपने हजारों सिपाहियों की लाशों को छोड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा था, और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब बताना मकसद ये है कि जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को मैदान छुड़ा सकते हैं, तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 थे। उन 72 की क्या शान रही है। सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने रब की रजा पे राजी थे, रब की रजा थी, रब की मर्जी थी। ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए हर मोड़ पे सब्र करते रहे, हर महाज पे सब्र करते रहे, हर मंजिल पे सब्र करते रहे, हर जगह सब्र करते रहे। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मैदान करबला में हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत हमें क्या दर्श देती है, वही सबक अब मैं बताने जा रहा हूं। सुनो प्यारे मुसलमानों, 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, मेरा हुसैन अपने खेमे में आता है। जैसे ही आप अपने खेमे में पहुंचे, देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। मेरी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं, बहुत गौर से सुने। जब मेरे हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, ये घराना कैसा घराना है। नबी ने फरमाया था, मेरे अहले बैत और कुरान हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं होगा, यहाँ तक कि ये हौजे कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। हुसैन का और कुरान का कैसा साथ रहा है। जब तक सर हुसैन का जिस्म से लगा रहा, तब भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, और सर तन से जुदा हो गया, तब भी हुसैन ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, बेटों का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। भाई भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। वो मेरी बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन बेपर्दा बाजारों में मेलों में घूमती हुई नजर आती हैं, वो कौन सा मुंह लेके जाएंगी हजरत ज़ैनब के सामने, वो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगी हजरत फातिमा के सामने। वो जिनका पर्दा, जिन्होंने अपने शौहर से वसीयत की मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा फातिमा क्यों? कहा जिसके सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर, कौन हुसैन है? 2 हुसैन अपने खेमे में आए हैं। अब मैदान करबला में जब जाने की तैयारी करते हैं, तो आका हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली, फातिमा ज़हरा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा हुसैन जब मैदान करबला में आने के लिए जब तलवार उठाता है, तब जवान बेटे ने कहा था, बाबा
बाबा अभी आपका जवान बेटा ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाया, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, और उधर मुअर्रिखीन यजीद के बारे में लिखते हैं कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है। वो 14 बेटों वाला यजीद आज पूरी दुनिया में सर्वे कर लीजिए, कहीं यजीद की नस्ल आपको नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, हाँ कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरारा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछोछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और जनेता शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं, और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हज़रत सईद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो हुसैन, एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, और बेटा भी वो बेटा जिसने करबला के वाक़े के बाद कभी मुस्कुरा के नहीं, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी तो मोड़ ऐसा आता है कि मुस्कुराया जाता है, आप कभी मुस्कुराए नहीं? फरमाया, बेटा जो मैंने देखा अगर तेरी आंखें देख लेती तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने पीने का सामान पहुंचाते थे, और पता भी नहीं चला उन्हें। आपस में कहते थे पता नहीं कौन घर पे सामान पहुंचा जाता है। हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर अभी लॉकडाउन में कुछ ने गल्ला बांटा था ना सामान, तो बांटा बाद में था, पहले खड़े करके फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड किया गया, पहले फेसबुक पे डाला गया, पहले व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, ये हाल था। अब तो ये तो नफली मामलात है, अब तो आदमी फर्ज अदा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको भी पूरा हज जो है वो फेसबुक की नजर कर दिया जा रहा है। अब तवाफ करते हुए आपका भाई, अब आबे जमजम पीते हुए आपका भाई, अब मैं मिना में जा रहा हूँ, अब मैं सफा पे दौड़ रहा हूँ, अब मैं मरवा पहुंचा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। किस्मत वाले पहुंचते हैं वहां, नसीब वाले पहुंचते हैं उस सरजमीन पर। बड़े मुकद्दर वाले थे, किस्मत वाले थे जो उस दयार में पहुंचे थे। आका के गुंबदे खजरा के साए में पहुंचे, मोबाइल एक तरफ रख के नबी की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लेते, हजरे अस्वद के बोसे ले लेते। वो हजरे अस्वद जो गुनाहों को चूस लेता है। कालक जबी की सजदहे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की। वो सरजमीन पे आप पहुंचे, क्या अच्छा होता कि ये मोबाइल एक तरफ रख के अल्लाह की इबादत कर लेते, जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, तो वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, आ रहे हैं वहां से गुनाहों की पोटरी लेकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 से जायद परिवार ऐसे जिनके घरों पे गल्ला पहुंचाते। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, बाबा मुझे मौका दे दिया करे, मैं ले चला करूं साथ में। तो कहा, बेटा अगर मैं तुझे दूंगा तो बताऊंगा भी कि फला घर में फला जगह पे फला गरीब रहता है। तो कहा हाँ, कहा न, मैं नहीं चाहता किसी का नाम बता के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, उस गरीब के बारे में बताया जाए कि फला मोहल्ला गरीबों का है, नहीं चाहता। ये था इमाम हुसैन के घर वालों की शान, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? मर्दों को
नमाज का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, हौसले का पैगाम देता है, और औरतों को करबला का मैदान पर्दे का पैगाम देता है, पर्दे का हुक्म देता है कि किसी भी हाल में पर्दा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको ये पैगाम दिया था, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए, हुसैन से सच्चा इश्क है तो कभी सजदा न छूटने पाए, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं उसकी कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत से मोहब्बत बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये